And Ma'am, I think you are not audible. Am I right? Ma'am is not audible, right? Guys, yeah, okay. Fair enough. Okay, no problem. No problem. I think thank you for the kind words, ma'am. I think ma'am can join in again. But thank you for the kind words. It's always an honor and a privilege to come back and talk to DY Patil. Um, DY Patil students, my own alma mater. So 2003 I was for the first batch जब हम पिंपरी से आकुड़ी आए थे और उस समय ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था and that is the year when I graduated from DY Patil. So I think a couple of more points definitely मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगा because तब आपको समझ में आएगा कि context क्या है, what is the context of this session, and who is talking, what he is talking, right? तो थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को. Hindi and English is fine for all of you. 134 लोग हैं यहाँ पे. I think I would like a response from everybody. Hindi and English is okay for everybody. A quick yes, no from everybody. That's very important. Yes, no, maybe. I can understand Marathi completely. So सवाल जवाब हम मराठी में कर सकते हैं if required. But I think while I give the understanding and presentation, I think I'll use Hindi and English mix. Hope that's fine with all of you, right? Okay, great. एंड रिस्पॉन्स देना जरूरी है. उसकी वजह मैं और बताऊंगा आप लोगों को इस सेशन में, ठीक है. This is the 40th session I am taking in last 60 days. I talk to 200 students every day. So you can realize जो मैं कह रहा हूँ, is it like going to everybody and it's from the heart to a student's mind. That's what is happening that's what will happen in today's session. ठीक है. All right. Okay. Thank you for responding. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. इट्स 6:06. ऑल ऑफ यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में एंटर हो रहे हैं, सो विच इज बेसिकली द 7th सेमेस्टर एंड यू आर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स. That's what I have been talking with Jasmita ma'am, and she told me about the CS and IT students are there, and I think मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा, और ये प्रेजेंटेशन नहीं है, वर्कशॉप है. वर्कशॉप का मतलब है यू नो एक तरफा नहीं होगा. मैं सवाल करूंगा, सवाल जवाब होंगे, एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वर्कशॉप प्रिडोमिनेंटली. हम 2 बार मिलेंगे, आज हम मिल रहे हैं और हम 6th को मिलेंगे. टुडे इज 4th एंड वी आर अगेन गोइंग टू कैच अप ऑन 6th. बट देयर आर टेक अवेज. कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. शुरुआत में लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, और उसके बाद जब सेशन खत्म होगा तो हमारा टेक अवे क्या रहा, हम क्या सीख के जा रहे हैं. दैट्स आल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, विद दिस लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, I hope all of you are able to see the screen. कुछ लोग yes, yeah, yes. fair enough. Okay, so जैसे मैम ने कहा डिजिटल सीवी, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं. रेज्यूमे बिल्डिंग है, डिजिटल सीवी है, जॉब सर्च है. सो यहाँ पे जो टर्म्स हैं, इन सबके अपने अपने एक सिग्निफिकेंस है, एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सिग्निफिकेंस right now. Okay, a quick introduction to the company. So we are an edtech and a skill tech. Okay, it's been 2 years now that I have been running this company. We have delivered more than 4,000 plus hours of program. We have interacted and skilled more than 7,000 plus individuals, and 30 plus institutes we have impacted. The whole idea is how do we make students day one job ready, but in a unique manner, which means what is required in the job, that is what you have to map it back to your academic syllabus.
making your degree relevant, and on the whole, becoming employable. If you all realize, getting a job is employment. Becoming employable means it's different than getting a job, right? So employable ka matlab hai, am I ready to crack the interview? Plus, if I crack the interview, am I ready to sustain the job for the first 2 years of my career? Right? That's what we means employable. और भी अगर मुझे easy language में बात करनी है, do I get the job that I want to do? मुझे कोई भी जॉब मिल गया वो मैं कर रहा हूं, या am I getting the job that I want to do? That's called as employability, right? So we are solving the problem of employability. That's the way we are functioning in the last 2 years, right? About me, I think ma'am has been very kind to talk about few things about me. Quickly, post my BTech from BE from DY Patil, Pune University. Then I did my ME from Thapar, and then I did my MBA from INSEAD, France. One of fortunate, I must say, I'm fortunate to be a part of one of the best institutes, starting from DY Patil those days till today, Thapar, and then INSEAD, top 5 B school in the world. Yes, I have spent around 16 plus years experience in education management and consulting. So थोड़ा सा unique इस मामले में है कि I have spent 16 years in consulting in Delhi, Mumbai, Kolkata and Pune, और parallelly 17 years. So वो parallel word जरूरी है, otherwise it seems as if I have a 33 years of experience, but I don't look that old, right? But yes, parallelly I have a 17 years of education management experience where I have mentored more than 2 lakh students to become employable across India. And that's why I was telling you that the things that I will talk is directly coming from the heart to the mind of every student. What I know or what I experience is at the end of the day, कोई भी content, फिर चाहे वो CV building का workshop हो रहा हो या कोई भी एक content पे बात हो रही हो, right? At the end of the day, that content must be able to get into the head of a student, and the student must be able to apply that content, right? That's the whole idea, right? Whenever we're talking about anything, right? So with this thought process, let me talk about the learning objectives, right? What are the learning objectives of this session, right? The learning objectives are 4 learning objectives, okay? The new norms, आज की तारीख के new norms थोड़े बहुत आपको अंदाजा होगा, थोड़े बहुत आपने पिछले मार्च 24 से लेकर अभी तक इतने सारे वेबिनार्स किए होंगे. आई एम श्योर वेबिनार सिंड्रोम भी हो गया होगा कि कोई आता है वेबिनार तो दिमाग में आता है एक और वेबिनार, समथिंग लाइक दैट, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा. कुछ लोगों ने कम सीखा होगा, कुछ लोगों ने ज्यादा सीखा होगा, बट यू हैव लर्न समथिंग और द अदर. आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिस कोविड. जब धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही है, न्यू नॉर्मल क्या है, राइट? न्यू नॉर्मल क्या है? और आप लोग अभी 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में पहुंच रहे हो, मतलब 1 साल और है आपको ग्रेजुएट होने के लिए 2021. तो you know what things you need to look for, right? Yes, you are in the placement season also, 7th semester, 7th and the 8th semester, both the semesters, right? So things will be different because it's not that कि पिछले साल जैसे हुआ था 3rd ईयर के साथ आपके साथ वैसा होगा, right? और ये मैंने 2008 भी देखा है. अगर कुछ लोगों को पता हो, 2008 में GFC हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. तब 2009 में क्या हुआ था, और आज अगर हम देखें 2020 में जो हो रहा है तो 2021 में क्या होगा, मैं पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं और उस हिसाब से मैं कुछ बात कर सकता हूं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू इंजीनियर्स. टिपिकली कंप्यूटर साइंस एंड IT की हम बात करेंगे बिकॉज यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम. ऑलराइट, स्किल्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा because this is predominantly the resume building and which we will do obviously, but resume किसके लिए बनना है वो भी तो जरूरी है. हम resume बोलते हैं, CV बोलते हैं, पर वो बनना किसके लिए है, क्यों? ऑन कैंपस जॉब है, ऑफ कैंपस जॉब है, थोड़ा बहुत मैं अंदाजा दूंगा. एंड यू नो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे और इन पॉइंट थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज तब आपको समझ में आएगा कि रेज्यूमे बिल्डिंग क्यों जरूरी है और नॉट मेकिंग. वो मेक अ रेज्यूमे वाले फैक्टर खत्म हो चुके हैं, अभी हम बिल्ड कहते हैं, बिल्ड योर रेज्यूमे, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ रेज्यूमे एंड बिल्डिंग योर रेज्यूमे, and we're going to talk about that today. All right, okay, before I start now, you know, before I go to the first point, so
6:13 हुआ है, right? And as I told you, I'm not going to only talk. I want to also, listen to you people also. So tell me about. अभी यहाँ आने से पहले टॉपिक तो आपको पता ही था पहले से, ठीक है? सो एक तो है कि सीवी बनता कैसे है, सीवी के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, डिजिटल सीवी क्या होता है. आई वांट टू आंसर दैट क्वेरीज, ठीक है? और वो आपको करना है और हम लोग 6 तारीख को दोबारा उसको चेक करेंगे बिकॉज ये वर्कशॉप है. इसके अलावा आपके मन में क्या सवाल आते हैं आजकल? Maybe let me see the 5-10 questions that you have in your mind, and we build on those questions, right? Let me see some of the questions that are there, people who are getting into the final year. Let's see some of the questions. So सवाल क्या आ रहे हैं कोई, because I am talking to third year students going to be final year. Let's talk about the 7th semester students we are talking about. So what are the questions that you have in your mind right now? What are the pressing questions? Questions क्या आ रहे हैं मन में, या ऐसे कुछ सवाल जो आपको लगता है सॉल्व नहीं हुए हैं, अभी भी मन में है और सुनते रह रहे हैं? Let's have some questions before I start. Guys, go ahead. Waiting for the questions. And I again repeat, it's an absolute privilege कि मैं 2003 में ग्रेजुएट होने के बाद I have spoken, I have come to the campus many times, I have met ma'am many times, but this is the first time I am talking online specifically to the college. So it's a great pleasure. I am pretty excited. So more questions would be very appreciated. चलिए, प्रतीक पूछ रहे हैं. प्रतीक, thank you for starting and taking that initiative. How to build a catchy online profile? Okay, that's a quite a millennial word, huh? Catchy. Okay, fair enough. Will there jobs available for the next 1 or 2 years? Okay, Rohit. Okay, fair enough. चलिए और कुछ questions आने दीजिए. So I'll wait for 3-4 minutes. Huh? Let's people write down their questions. Let me see what all questions you have. So Pratik, by the time people are asking questions, online profile जरूरी है, कैची ऑनलाइन प्रोफाइल जरूरी नहीं है, राइट? ऑनलाइन प्रोफाइल होना ही अपने आप में कैची है, एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज, राइट? देयर इज नो वर्ड कॉल्ड कैची ऑनलाइन प्रोफाइल, ठीक है? आप जो कह रहे हो वो कह रहे हो मुझे सर ऑनलाइन में तो जाना है और मैं हूं भी शायद, पर हाउ डू आई गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिक्रूटर्स? ये आप मुझसे पूछ रहे हो बाय योर क्वेश्चन. आई होप आई हैव रिफ्रेज्ड योर क्वेश्चन इन अ बिट टेक्निकल मैनर, बट इसका जवाब आपको मिलेगा. सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. रोहित, will there be jobs? ऑब्जेक्टिव आंसर ये है कि there will be jobs. अगर आप पूछ रहे हो जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं, अवेलेबल रहेंगे कि नहीं 1 साल बाद, बिल्कुल जॉब्स अवेलेबल रहेंगे. The one point that you need to be you need to be aware of, किस तरह के जॉब्स रहेंगे. मतलब 2019 में जो जॉब्स थे उन्हीं कंपनीज में 2021 में वो जॉब्स होंगे क्या? द आंसर इज यस और नो, मे बी. सो जॉब्स होंगे, किस तरह के जॉब्स होंगे ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए. होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. प्रतीक, जैसे मैंने कहा, आपको प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे वेयर दैट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, दैट हाउ डू आई build my online profile? That's the question. Fair enough. Is it necessary to always build resume company specific? Mayuresh, always no, sometimes yes. That's the point. Not always, sometimes it is important. For example, you are building a CV or a resume for a product company, or you are building a CV or a resume for a service company. Will be a slightly, I would not use the word slightly, but it will be different, and that's why it is necessary. I hope that answers that query. What is portfolio? Portfolio, Vidansh, portfolio का मतलब होता है, see again, ये अलग-अलग इंडस्ट्री में अलग-अलग वर्ड्स यूज होते हैं. आपके लिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए जो फाइनल ईयर में जा रहा है, लेट मी टॉक अबाउट, आप लोगों को मैं फाइनल ईयर बोलूंगा. फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, राइट, पोर्टफोलियो, सीवी, रेज्यूमे, इनका ज्यादा फर्क नहीं है. ओके, आंसर टू दैट इज आपका एक सीवी होगा, जिस सीवी में आप, जो हम आज देखेंगे, उस सीवी में कुछ पॉइंटर्स होंगे जो हाईलाइटेड होंगे, जो आपका पोर्टफोलियो है इन अ लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स. क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डूइंग, ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना है. ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द जॉब. ऑब्जेक्टिव इज टू कन्विंस द रिक्रूटर कि इंटरव्यू के लिए मैं तैयार हूं और मेरा इंटरव्यू लीजिए. I hope that answers your query, Vedansh. Thank you for the question.
Kirti, I think I've answered that query with respect to Mayuresh. कि is resume should according to individual company. I think मैंने जवाब दिया जो मयूरेश को. Not always, sometimes, but 80% of the content in a resume, all the more in today's time, more or less remains the same. Thank you. Harshada, everyone is preparing for the same, but how do I stand out? You stand out 30% with your resume, 70% with your communication. You stand out 30% with your resume by not doing the mistakes, but by not doing the don'ts of the resume, right? But following that. And 70% by your communication, your way of expressing yourself. क्या वो सीखा जा सकता है? बिल्कुल. क्या वो बदला है? 2019 से 2020 में बिल्कुल बदला है बिकॉज ऑफ द न्यू नॉर्म दैट वी आर टॉकिंग. वो जानना जरूरी है, उसके लिए एक बार जानने के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है. दैट्स एन आंसर टू योर क्वेरी. What detail of the resume? Evita, this is what we are going to talk today, and you will go to see somewhere in our do's and don'ts and a resume snapshot. You're going to see the detail of the resume that the recruiter noticed at the first glance. All right. Ansh, how many projects does a third year student should have? Okay, very subjective question, Ansh. It's not about how many, it's about the quality of one project that you have done. Quality of, even if you have done 5 projects, but the quality which the recruiter is looking, if it is not there, those 5 projects candidly doesn't matter. I take a lot of interviews, and as I told you, right, I'm dealing with students every day. At the end of the day, what is important is the fact that it's not the number of projects, it's the quality of the project that you have done and how do you present that project. You know what, many times I have seen that people have done some really good projects, but they couldn't represent that in the CV, neither could express that. And that's where the difference comes. So it's not about how many projects, it's about whatever project I have done, 1, 2 doesn't matter. Am I able to represent that in the CV and express that confidently when asked? Does that, so will the medium of communication has changed? Yes, it has changed. Will that impact the way you communicate? Absolutely. Giving a face-to-face interview and giving a Skype interview or a telephonic interview is going to be different. So, उसकी प्रैक्टिस करनी है क्या? बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है. जितनी उसकी प्रैक्टिस की जाएगी, जितना उसमें तैयार किया जाएगा, सीवी बिल्डिंग से लेकर अपने आप को एक्सप्रेस करने तक उतना अच्छा होगा. That's the point. Bhagyashree, would companies recruitment will be less this year? Yes, the answer is yes, obviously, right? Situation वैसा है, आपका इकोनॉमी डाउन है, इकोनॉमी दुनिया भर में डाउन है. अगर इकोनॉमी डाउन है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है लिक्विडिटी इन द मार्केट. लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, लिक्विडिटी का मतलब कैश क्रंच. अगर कैश क्रंच नहीं है, इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो अगर कोई कंपनी अगर आपको 20 लोगों को रिक्रूट कर रही थी इस साल, 20 लोगों को, तो कितने लोगों को करेगी? 10 लोगों को करेगी या 8 लोगों को करेगी. इसका मतलब कंपटीशन बढ़ेगा इस साल, बिल्कुल बढ़ेगा. अगले साल भी कंपटीशन ऐसा ही बढ़ने वाला है. दैट्स एन आंसर बिकॉज जो डेटा कहता है, पिछले 70 साल का डेटा है, वो ये कहता है हर इकोनॉमी को दोबारा वापस आने में 15 से 18 महीने लगते हैं. Keep that in mind. That's what the data shows of the recession and how the recession has gone up. ऐश्वर्या, सर्टिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट, आप अगर ये पूछ रहे हो क्वेश्चन मार्क डालकर करने जरूरी है कि नहीं, द आंसर इज यस. अगर आप पूछ रहे हो कितने करने जरूरी है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं. आई थिंक निखिल, दैट्स द सेम क्वेश्चन दैट यू हैव पॉइंटेड आउट. अगेन द पॉइंट ओवर हियर इज गाइस, सर्टिफिकेट्स एंड प्रोजेक्ट्स करने जरूरी हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिप्रेजेंटेशन में 80-85% ऑफ द पीपल गो आई वुड से गो हेवायर. और काफी बार, और आज की तारीख में तो आपको शायद मौका नहीं मिलेगा अगर वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हेवायर हो जाए. क्यों? क्योंकि फेस टू फेस में फिर भी मौका मिलता है, फिर भी मौका मिलता है कि सर जो लिखा और जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा गैप है, मे बी बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ अवेयरनेस और अटेंशन टू डिटेल, मेरा लैक था. लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि डिजिटल स्पेस में, और मैं इसके बारे में बात करूंगा, डिजिटल स्पेस में आपका कंटेंट और आप द वे यू प्रेजेंट, सी इट्स वेरी सिंपल, राइट? आपको जब कोई फैकल्टी पढ़ाने आ रही है, आप देख सकते हो, राइट? डिजिटल स्पेस में कोई फैकल्टी जब पढ़ा रही है और फिजिकल स्पेस में जब पढ़ा रही है, फर्क है, राइट? The faculty must be really ready with the content, if you realize what I'm talking, right? Same logic with you. जब आप नौकरी के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, you have to be really ready with the content. और
डिजिटल स्पेस में होता क्या है कि जो अटेंशन होता है सामने वाले का, वो अटेंशन बहुत कम होता है। आप अपने आप को देख लो, अगर आप Amazon में जाते हो, व्हाट इज द अटेंशन यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू बाय? इट्स ओनली 7 to 10 seconds एंड इमीडिएटली योर आई मूव फॉर द अदर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली दैट्स गोइंग टू हैपन नाउ। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव डन, इट हैज टू बी डन इन अ वेरी मेटिकुलस मैनर। और इस तरीके से जो आई थिंक सबसे पहले प्रतीक ने यह सवाल पूछा था कैची, मैं कैची अब यूज करूंगा इस तरीके से कि सामने वाले को नजर आए कि आप क्या कर, आपने क्या किया है और किस तरह किया है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। Vivek, do internships make any difference getting a job? It does make a difference because internship का मतलब ये है। पर अगर आप पूछ रहे हो कि मैंने आज तक एक भी इंटर्नशिप नहीं किया और मैं आगे अगर मैं नहीं किया तो मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, उसके दो आंसर हैं। इंटर्नशिप नहीं किया तो जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप किया तो जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली। That's the way I will put it, right? So it is necessary but not sufficient. That's how I'm going to put that answer to your query. परसेंटेज कीर्ति, परसेंटेज मैटर्स एज ऑलवेज, हमारे टाइम पे भी, 2010 में भी और 2020 में भी परसेंटेज मैटर करता है। आई वुड सजेस्ट फर्स्ट क्लास एटलीस्ट आप रखने की कोशिश करिए। अगर फर्स्ट क्लास नहीं है तो थोड़ा वो केस टू केस बेस बन जाता है। मे बी वी कैन टॉक ऑफलाइन ऑन दैट कि कैसे आप परसेंटेज कम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, but at the end of the day percentage do matter, right? All right. Project certificate तुषार हो गया। Coursera, are these really important for getting placement? Soumya, no. If you are asking me are these really important, the answer is no, right? If you have done, great. If you have not done, doesn't matter. एक बात बताना चाहूंगा, आपने ये सवाल पूछा which is great, इस आपके थ्रू मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ। You know हुआ क्या है अभी हुआ क्या है कि डिजिटल स्पेस में जब से हम लोग लॉकडाउन में हैं, हमारा डिजिटल कंजम्पशन सब कुछ बढ़ गया है। डिजिटल कंजम्पशन हमारा बहुत बढ़ गया है। तो हुआ ये है कि कंपनीज अब ये बोल रही है, पहले क्या होता था, पहले होता था कि अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट गोइंग कपल ऑफ इयर्स बैक, कपल ऑफ इयर्स नहीं, मैं कम से कम 25-30 साल पीछे जा रहा हूँ। उस समय जब हमारे पेरेंट्स, इनफैक्ट 40 साल, हमारे पेरेंट्स जब ग्रेजुएट करते थे तो बोलते थे ग्रेजुएट कर लो तो नौकरी मिल जाएगी। फिर एक टाइम आया जो बोले ग्रेजुएट करो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ठीक है ना, तो फिर आप नौकरी में आगे बढ़ सकते हो। इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग इमीडिएटली करते हैं, कुछ लोग कुछ साल बाद करते हैं, पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो बोलते हैं कि आप नौकरी में और आगे बढ़ सकते हो। फिर एक वक्त आया 7-8 साल पहले कि आप ग्रेजुएशन हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सर्टिफिकेशंस करो। क्यों ऐसा आया? हमेशा ना लॉजिक पूछा करो, व्हाई। And that's how I am. That's how I am. I've kind of built the entire thought process कि why पूछने पे ना जवाब बहुत solid मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। तो why सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा लगा जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री में हो रहा है उसमें गैप है। तो अगर उसमें गैप है तो सर्टिफिकेशन बनाए गए, सब्जेक्ट्स बनाए गए, जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हो उसको कॉम्प्लीमेंट करना है सर्टिफिकेशंस के थ्रू एंड इंडस्ट्री कह रही है ठीक है अब आपको वो चीज आती है जो मुझे इंडस्ट्री में चाहिए। पिछले 4-5 साल से क्या हुआ है, सर्टिफिकेशन एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा रह गया है। सर्टिफिकेशन में अगर प्रोजेक्ट नहीं है, सर्टिफिकेशन में अगर इंडस्ट्रियल डेटा पे आपने काम नहीं किया है तो उस सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आप 10-12 कोर्सेस लिख दो कोर्सेरा में बैठकर कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, यूडेमी के कोर्सेस कर लो, यूडेमी मॉडल में लगता है 1000 रुपए 1500 रुपए में चीजें मिल रही हैं तो कर लेते हैं। पर कहीं ये लिखा नहीं होता है कि मेरे जॉब रोल के लिए, जिस जॉब रोल के लिए मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहती हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए यह सर्टिफिकेशन है क्या, और इस सर्टिफिकेशन में मैं क्या इंडस्ट्रियल डेटा पे काम करूंगा या करूंगी, तो मुझे 100% एम्प्लॉयबिलिटी वाली थॉट प्रोसेस मिलेगी क्या। और कहीं ना कहीं यही वो सवाल था वेयर काइंड ऑफ my startup came into picture, where this is what we are doing at the end of the day. So through this question I also highlighted the point that certification सिर्फ जरूरी नहीं है, certification में इंडस्ट्रियल डेटा के साथ काम करना जरूरी है, which can make you 100% employable. I think that's more important, Soumya. Through your question I have kind of answered, काफी लोगों के दिमाग में ये पॉइंट होगा, I think I have answered that query. Shirang, can I negotiate about the salary with the panel? See, I tell you what, Shirang, you know what? जब रिसेशन आता है ना तब हम जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, तब हम इनकम सर्च कर रहे हैं। And I am being very blunt and open, guys, to all of you. एक तो ये कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, I am talking to my alma mater, you understand that, right? दूसरा ये कि this is the way I always communicate, that you should know what's the ground reality,
राइट? और आपकी उम्र में क्या होता है? मैं अगर ये बात करूं कि ऐसा नहीं होता है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज मैं आपसे 17 साल बाद की बात कर रहा हूं, राइट? 17 साल बाद क्या हुआ है डजंट मैटर, आपको चाहिए कि भैया अभी क्या होगा मेरे साथ। तो अभी ऐसा है कि इट इज नॉट जॉब सर्च, इट्स एन इनकम सर्च. So my suggestion to you would be, through you to everybody, take a job, take the job for the income. Right now with the recession, mindset बदलना बहुत जरूरी है. और मैं एक बात बताता हूं आपको, whether it's a startup company you want to join, say company like Skill Edge, say मेरी company, or a incumbent company, incumbent का मतलब a company which is already established like TCS. इस वक्त कंपनी ये देख रही है, can an individual join me and provide value to my work? So when the recession goes down and the economy goes up, जो लोग इस समय जुड़ गए कंपनी के साथ और उन्होंने सपोर्ट किया, they are going to get benefited a lot. So my suggestion to you would be, salary negotiation should not be a point right now in your mind. It should be, let me get an income. जहां पे लोगों के जॉब्स छूट रहे हैं, जहां पे लोगों को ले ऑफ किए जा रहे हैं, इस वक्त इनकम मिलना जरूरी है rather than job. That's the mindset I would like you to create. I hope that answers your query. Pranav, is there any specific domain currently? We're going to talk about some domains which are there part of my presentation. Specific नहीं है, but एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा. Engineering, CS, IT, you all are very much needed in the industry. So gear up. So ये positive point है. मुझे नहीं पता आपको कितने लोगों ने क्या बताया है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, जॉब्स नहीं है, नेगेटिविटी बहुत है, अनसर्टेनिटी है, शायद ये सब होगा. लेकिन मैं जहां से देख रहा हूं, मैं हर रोज बहुत सारे सीईओ से बात करता हूं, मैं खुद इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूं, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, उनकी स्किलिंग हो रही है. मैं ये जानता हूं जॉब्स अवेलेबल है. 2021 जॉब्स अवेलेबल है. पॉइंट ये है, आपको पता होना चाहिए कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन से स्किल्स चाहिए, और मैं तैयार हूं क्या अपनी डिग्री के साथ, और डिजिटली मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूं कि नहीं. दैट्स द होल पॉइंट. There's lots of positivity around. I can tell you that. आपने शायद सुना नहीं होगा, या थोड़ा बहुत सुना होगा, या थोड़ा बहुत नहीं सुना होगा. I don't know. With me, I can always tell you the fact that there are n number of things happening, positive things happening, not only in India but also across the world. So these are all positive signs. All right, great. Pratik, any programming language? I think same answer. I will talk about that during my presentation. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. CSIT के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है. पाइथन, अगेन रैंडम सर्टिफिकेशन नहीं करना है प्रतीक. पाइथन अगर करना है, इंडस्ट्रियल डेटा पे काम करना है, देन यू आर रेडी, माइंड यू. एंड उसको एबिलिटी है क्या कम्युनिकेट करने की. आज की तारीख में ना कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से ऊपर हो चुका है. I'm going to talk about that maybe in few slides in my presentation. Jack of all trades, Aishwarya, jack of all trades, master of none, unfortunately नहीं चलेगा. आज की तारीख में हम बोलते हैं हमें T-shaped individual चाहिए. T-shaped. What is T-shaped? T-shaped का मतलब होता है you need to have a knowledge, pick up one knowledge and go deeper. That is called T-shaped individuals. और कहीं ना कहीं यही बात है कि अगर आप सर्टिफिकेट करते हो, then build that knowledge and do some hardcore life project और इंडस्ट्रियल डेटा पे काम करो, तो आपका नॉलेज स्किल में कन्वर्ट होगा. क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सर्टिफिकेशन का मतलब स्किलिंग. स्किलिंग कब होता है? जब आप लर्निंग करते हो और उसको अप्लाई करते हो, तब जाके वो स्किल बनता है. I think Aishwarya, jack of all trades, master of none. No, jack of all trades maybe master, or towards the zone of master for one. That would be important. Dhruv, what are the don'ts of making a resume? We'll cover that in my presentation. How many internships? I've told you, Disha, number of internships doesn't matter. One internship, but the quality of not the company, but the kind of work that you are doing. How do I define quality? You define quality by the nature of the work. उसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हो कि सर इस तरह का काम मिल रहा है, ये मुझे करना है आगे, क्या मैं इस तरह का काम करूं? इस तरह का काम मतलब क्या इस काम में कुछ और चीजें हो सकती हैं, ऐड कर सकती हूँ जिससे मुझे और सीखने को मिले. वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दिशा. इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी, इट्स अबाउट कौन सी इंटर्नशिप, उसमें क्या काम है. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ATS resume. It's okay, Anam. I think that's fine. It is whether it is good to have. Yeah, it is good to have. It's not must. It is good to have. It's not must. So must में जो चीज आती है वो मैं आपसे बात करूंगा. Good to have is okay. अगर नहीं भी हो तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है.
विच कोडिंग लैंग्वेज? आई एम गोइंग टू टेल यू कीर्ति, एक लैंग्वेज नहीं है, दो तीन चीजें हैं जो हमको सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. परसेंट पैंडेमिक विल अफेक्ट हाउ मेनी परसेंट? सो परसेंट पैंडेमिक, आई थिंक अभी सवाल थोड़ा रोक दो, मंजीत तक सवाल रोक दो, मे बी वी विल टेक मोर क्वेश्चंस एज वी गो अहेड. हाउ परसेंट बोलना मुश्किल है सारिका, बट प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा. मैंने क्या बोला, पहले कंपनीज के पास 100 सीट्स थे, पर अभी कितने होंगे? 70-80. पर मुझे एक बात बताओ सारिका, कहाँ ये बोला गया था कि बिना कंपटीशन के जॉब मिलेगी? ये तो कभी नहीं था, राइट? कंपटीशन अभी भी है, मैं बार बार कह रहा हूं, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है. इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. पॉइंट पता है क्या है? पता है क्या कि कौन से जॉब में क्या स्किल चाहिए और मैं तैयार हूं क्या उसको एक्सप्रेस करने के लिए. तो ना, आपके क्वेश्चन के थ्रू अगेन मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं जो टेक अवे है. पहला पॉइंट क्या है? अवेयरनेस. सो लेट्स क्रिएट द अवेयरनेस कि कौन से जॉब रोल में क्या, कौन से जॉब रोल में क्या स्किल्स चाहिए. उसके बाद आर यू रेडी? और उसके बाद जो जो तीसरा आता है सेगमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट सारे सेगमेंट्स है, पर वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम आई रेडी बाय कम्युनिकेशन? क्या मैं कम्युनिकेट, डू आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन? दैट्स द पॉइंट. I think that's answer to your query, Sarika, and answer to many all other questions. I think I have summed up that. Focus on package, बिल्कुल नहीं. Focus on package, बिल्कुल नहीं. I think मैंने इसका जवाब दिया हुआ है. इस वक्त पैकेज पे फोकस नहीं होना चाहिए. आई टोल्ड यू राइट, इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स अबाउट इनकम राइट नाउ. दैट्स द होल आइडिया. ऋतिक, राइट? मंजीत, एम कार्ड एंड एलिट मस्ट बेनिफिशियल, डिसेंट है, दे आर डिसेंट बिकॉज दीज टेस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट. सो आप लोगों ने एक एसीटी बोलते हैं, एक एसीटी फ्रेमवर्क बोलते हैं. एसीटी का मतलब होता है एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल. ये जो एसीटी फ्रेमवर्क है, ये नेशनल स्किल काउंसिल ने बनाया हुआ है. नेशनल स्किल काउंसिल, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का पार्ट है. उन्होंने बनाया हुआ है कि किसी भी इंजीनियर को जॉब के लिए तैयार अगर होना है तो वो है एसीटी फ्रेमवर्क. ए का मतलब एप्टीट्यूड, जो आप सीआरटी में, आपके कॉलेज में भी सीआरटी है, जो सीआरटी में आपको सिखाते हैं. सी का मतलब कम्युनिकेशन, वो काफी हद तक बदल गया है. अब कम्युनिकेशन सिर्फ आपका वर्बल नहीं रहा, सिर्फ वर्बल नहीं रहा, राइट? कम्युनिकेशन बदल गया है, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड टेक्निकल, जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई, राइट? अच्छा मैम, यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ. यस, आई कैन टेक द क्वेश्चंस पोस्ट द सेशन. तो उस हिसाब से मंजीत, अगर आप देखो, एमकैट एंड एलिटमस ये बेनिफिशियल है. इन ऑर्डर टू, आप देख सकते हो कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो टू टेक दैट एप्टीट्यूड एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? जॉब मिलने के लिए बहुत बहुत जरूरी है क्या? आई डोंट थिंक सो. बट अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि बाकी से मैं कैसे कंपैरिजन या कितना कॉम्पिटिटिव हूं, आई थिंक उसके लिए ठीक है. COVID-19, Kirti, I think I have spoken about it, more on that as we go along. What are the important things? अभी के I think बहुत जेनरिक सवाल है, बट मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस ऑफ द स्किल्स which are required for particular jobs post COVID-19. अवेयरनेस के बाद प्रिपरेशन, हाउ डू यू प्रिपेयर? एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यू डोंट हैव टू प्रिपेयर 100%. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थोड़ा सा 5 मिनट के लिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन. एंड ऑल दिस, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इन योर सीवी? That's what I would say important things on an aspect from the students, right? All right. So I think ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट बदला. आप लोगों ने शायद सवाल प्रेजेंटेशन के बाद हमेशा पूछे हैं, पर देखो अभी इन जवाबों के मिलने के बाद we all are geared up, right? We all are pretty excited to know what's coming, और at least कुछ सवालों के जवाब क्लियर हो चुके हैं अभी से. I think that's why it's pretty helpful. All right. Okay. अभी मैं, so I'm going to start the presentation now, and कुछ सवालों के जवाब अब हम डिटेल में बात करेंगे. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, जस्ट all right. All right, so I hope you are able to see the screen, and I just do F5. Yeah. So new norms.
मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, यहां जो लिखा हुआ है, व्हाट इज स्टॉप माइंडसेट? स्टॉप माइंडसेट ना, स्टॉप एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब है, एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्म। आप ऑफिस कंटिन्यूअसली नहीं जाओगे, और मैं अब 2021 की बात कर रहा हूं। सो ऑलरेडी आई नो यू विल स्टार्ट योर जर्नी, यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप और जॉब इन 2021, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सपेक्टिव। ओके, सो एस का मतलब है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक नया नॉर्म है। यू विल गो टू द ऑफिस 50% ऑफ योर टाइम, फिजिकली आप ऑफिस में रहोगे, 50% नहीं रहोगे। टी का मतलब है ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम सबका एक कैलकुलेशन निकला था कि 600 घंटे साल के, मतलब 25 दिन, राइट, इन अ लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स, आप 25 घंटा दिन का काम एफिशिएंटली कर सकते हो, क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम कम होने वाला है। इससे क्या फर्क पड़ेगा काम में? इससे काफी फर्क पड़ेगा काम में, विच वी आर गोइंग टू लर्न। इससे काफी फर्क पड़ेगा काम करने के तरीके में और जिस तरह आपको काम मिलेगा। ओ का मतलब है आपका, एस हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, टी हो गया आपका ट्रैवल टाइम, राइट। ओ का मतलब है ऑक्यूपेंसी। आपने सुना होगा टीसीएस ने बोला है 2025 तक 75% ऑफ द एम्प्लॉइज आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम। ऑक्यूपेंसी लेवल्स अगर कम होंगे, तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स कम होने पे क्या फर्क पड़ेगा? बड़े सारे फर्क पड़ेंगे। ऑक्यूपेंसी लेवल कम होने पे व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम, तो तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बदलेगा, कंपेंसेशन स्ट्रक्चर बदलेगा, बिकॉज योर ट्रैवलिंग विल बी मिनिमल। आप अगर कंपनीज के ऑक्यूपेंसी कम है, इसका मतलब कंपनीज विल बी चूजी कि एट द एंड ऑफ द डे हमें उतने ही लोग चाहिए जितने लोग काम कर। वो जो बेंच का कॉन्सेप्ट है ना, बड़े बड़े कंपनीज में बेंच का कॉन्सेप्ट, और मैं स्पेसिफिकली आईटी की बात कर रहा हूं, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू सीएस एंड आईटी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंच विल स्लोली एंड स्लोली मूव आउट, बिकॉज ऑक्यूपेंसी विल बी वेरी, ऑक्यूपेंसी एकदम उतनी ऑक्यूपेंसी होगी जितनी जरूरी है एज फार एज द प्रोजेक्ट इज कंसर्न, विच इज अ गुड पॉइंट, विच इज अ गुड पॉइंट। और पी का मतलब है पोल्यूशन, राइट। व्हेन पोल्यूशन, आपकी ट्रैवलिंग कम होगी तो जो एमिशन होता है, एज वी टॉक अबाउट द ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, जो एमिशंस होंगे वो एमिशंस कम होंगे। सो वो होता है ना आपका एनवायरमेंट टैक्स होता है, आपका वो सारी चीजें जो टैक्स होती है जो आपके सैलरी से ली जाती है, राइट। सो दिस आर द इम्पैक्ट फॉर एवरीबडी, वो शायद कम कटने लगे क्योंकि आपका पोल्यूशन कम होगा। सो there is an impact going forward, and you will see that impact by the time you get into a job, right? Maybe around 2021, 2022, and so on and so forth. Acha, less is more. What is less is more? So the point is, in today's time, whether you are, acha, by the way, whenever I say today's time, it is not about 2020. What I'm talking about, 2020 में जो हुआ with respect to this pandemic, इसके बाद जो नया नॉर्म बना, उस नॉर्म में क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। अगेन, इट इज नॉट व्हाट रोहित सर इज सेइंग, it's what the industry is talking, it's what the CEOs of startups and the organized companies are talking, and that's why मैंने इसको छोटे फॉर्म में एक कंसाइज फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेस इज मोर का मतलब क्या है? दो मतलब है। एक, जब आप जॉब ढूंढते हो, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो, अब वो सिनेरियो बदल गया कि आप ब्लाइंडली 50-60 कंपनीज को एक साथ अप्लाई कर रहे हो। वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की नजर ही नहीं जाएगी आपके सीवी पे अगर आप वैसा करोगे तो। आपको कम लोगों, कम कंपनीज को अप्लाई करना है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए ज्यादा, इन ऑर्डर टू गेट एन इंटरव्यू कॉल एंड देन क्रैक द इंटरव्यू। इसको बोलते हैं लेस इज मोर। You need to be more prepared while applying on campus as well as off campus. Obviously on campus, Jasmita ma'am is there, the entire ecosystem is there, but still at the end of the day, there also you have to select companies when you are representing CV, because when you are representing, it's ma'am representing on behalf of you to the company, right? So less is more. And एक दूसरी बात भी है जो मैं आपको सवालों के जवाब देते वक्त बता रहा था, 100% पढ़ाई की जरूरत नहीं है कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। दैट्स द वेरी ब्यूटी ऑफ इट टुडे। इट्स लाइक आपको फॉर एग्जांपल you want to do a Python, right? For example, you want to get into AI ML में आपको जाना है, artificial intelligence and machine learning में। For that you want to do Python, right? पहले तो ये पता करना जरूरी है कितना पाइथन मुझे आना चाहिए
so that at least I can crack the interview and I am employable for the first 2 years. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल. You do not have to learn entire course on Python. You may not. अगर आप 30% भी पढ़ लो तो ये रिसर्च करना जरूरी है. या तो ये रिसर्च करके आपको मिल जाए कहीं से, या आपको बात करनी पड़ेगी कितना पढ़ना जरूरी है, और वो पढ़ के मैं उसका एक प्रोजेक्ट कर लूं एंड आई एम एम्प्लॉयबल, बिकॉज देन आई नो आई हैव टू वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस दैट प्रोजेक्ट टू माय रिक्रूटर. दैट इज इट. उसको मैं कह रहा हूं लेस इज मोर. ये बात ध्यान रखना है. ये ऐसा है कि बुफे में आपको स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट सब नहीं खाना है. आपको एक चीज खाने पे भी काम चल सकता है. दैट्स द होल पॉइंट. दैट्स व्हाट इंडस्ट्री इज टॉकिंग. सो इसीलिए मैंने शुरुआत के जवाब दिए कि रैंडमली सर्टिफिकेशंस नहीं करने, राइट? दैट्स द पॉइंट. और रही बात टेक्नोलॉजी ट्रेंड की, ओके, सो टेक्नोलॉजी ट्रेंड में अगर आप देखो, सो देयर इज डेटा, राइट? एवरी टेक्नोलॉजी इज विद रेस्पेक्ट टू डेटा. जहां भी डेटा है, द CSIT पीपल, जहां भी डेटा है मतलब चाहे वो फिर एक रिटेल कंपनी हो, चाहे वो एडटेक कंपनी हो, चाहे वो एक लॉजिस्टिक कंपनी हो, या एक हेल्थ केयर कंपनी हो, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट कंपनी हो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डेटा. और मैं दोबारा कह रहा हूं, CSIT इंजीनियर्स आर very much required with respect to the current data skills which are required in order to be employable. इंपॉर्टेंट चीजें वही हैं. पहला अवेयरनेस, दूसरा अवेयरनेस को कन्वर्ट करके अपने आप को तैयारी, लेस इज मोर, उतनी ही तैयारी, और तीसरा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ओनली क्रैकिंग द इंटरव्यू. GDPI वाले दिन खत्म है, लेकिन GDPI सिर्फ जानना इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन टुडे, इट्स मच बियॉन्ड इट, right? So technology trend में बात करते हैं, anything and everything related to data. I would say data science, I would say AI ML, I would say RPA, I would say cloud computing at a fresher level. From say for example पुणे में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, COEP, DY Patil, MIT, VIIT, यहाँ से जो बच्चे कंपनीज में जाते हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ. ऑब्वियसली आई कुड हैव सेड ब्लॉकचेन, मैं और भी कुछ टेक्नोलॉजी के बात बोल सकता हूँ, बट यहाँ से जनरली लोगों के प्लेसमेंट्स ब्लॉकचेन में नहीं होते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन में इंडिया में जॉब्स वैसे ही बहुत कम है. तो मैंने कहा ना, मैं वो बातें बोलूंगा जो आपको सूट कर रही है, राइट? सो आई वुड कैटेगरिकली विल से डेटा साइंस, वुड डेफिनेटली से ML एंड ML इंजीनियर, जिसको हम जो डेजिग्नेशन मिलता है वो मिलता है ML इंजीनियर या डेटा साइंस इंजीनियर. Then on the cloud computing side, definitely on the RPA side, robotics process automation. इन चीजों में ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं. ट्रेंड्स अभी के नहीं, ये पहले भी थे, पर मैं इन ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं जहां पे वैकेंसीज हैं. और मैंने वैकेंसीज के अलावा ये भी बोला कैसे आप अपने आप को इस पे अपने आप को तैयार कर सकते हो. ऑलराइट, यू नो, इस वाले स्लाइड पे मैं बहुत देर तक बात नहीं करूंगा, बिकॉज मे बी वी कैन हैव अ चैट सेपरेटली ऑन दिस. पर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे, ये पहला और चौथा, राइट? सेकंड मैं बोल चुका हूं, कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा, सिर्फ आपका GDPI वाला कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. इमोशनल क्वोशिएंट का मतलब, मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूं, मे बी इन डिटेल वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ डू यू क्रैक योर इंटरव्यू digitally. How do you crack your interview digitally? से लेकर time management, work scheduling, conflict management, your ability to deal with your peers digitally, your ability to work at home when nobody is watching you, that is being highly emotional. आपका emotional quotient काफी high होना चाहिए. Finally, how do you deal with your clients? ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं customer centricity. So from cracking the interview to customer centricity, ये भी और it is going to be one of the major factors for you to become employable. याद रखना, employable का मतलब cracking the interview and, as I said, sustaining your job for the first 2 years. So programming, programming is important. मैंने आपको technology trends के बारे में कुछ बताया. As a CS and IT individual, it is important to get the mindset of programming. Now you may not know all the languages, which is not industry is looking anyway. पर आपके अंदर programming का mindset है क्या? Do you have a mindset of programming? Then, so if you only know .NET, right? If you only know .NET, that's not going to work much, right?
अगर मैं स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं, मैंने बात की उस बारे में, एआई के बारे में बात की, पाइथन के बारे में बात की, तो प्रोग्रामिंग आना चाहिए, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड। पर अगर मान लो कोई कहता है सर मुझे स्पेसिफिक लैंग्वेज पे नहीं आता है, बट आई नो व्हाट इज लॉजिक, आई नो व्हाट हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो गुड। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट्स द पॉइंट। एंड इफ यू कैन लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नथिंग लाइक इट, बट प्लीज डू लेस इज मोर कॉन्सेप्ट, अप्लाई टू इंडस्ट्रियल डेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बीइंग डिजिटल, ये अभी हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सीवी बिल्डिंग, बट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मतलब, आप अभी प्रतीक ने पूछा था शुरुआत में कैची ऑनलाइन प्रोफाइल, वो कैची वर्ड अगर मैं हटा दूं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप अगर ऑनलाइन प्रेजेंट हो, ऑनलाइन प्रेजेंट का मतलब योर सोशल मीडिया स्टार्टिंग फ्रॉम योर LinkedIn, I don't know how many of you have LinkedIn profile, but one of the key things, one of the key takeaways, प्लीज प्रिपेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसमें अगर दिक्कत है हम बात करेंगे, बट लिंक्डइन में आना सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, योर फेसबुक अकाउंट, योर ट्विटर अकाउंट एंड योर से फॉर एग्जांपल योर इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट। अगर मैं नेटवर्किंग की बात बोलूं तो आपके नेटवर्क में किस तरह के लोग हैं, आपका फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट लिंक्डइन में कौन है, और आपने कितनी बार उनसे कनेक्ट किया है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, पर उनकी बातों को आपने रिप्लाई किया है। ये ना नेटवर्किंग के कुछ डूज एंड डोंट्स अगेन है एट अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, एट अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। कॉलेजेस, स्टूडेंट्स आजकल ये सीख रहे हैं ताकि उनकी विजिबिलिटी ऑनलाइन बढ़े। किसी ने मुझे पूछा था अभी सवाल में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं अपने आप को अलग कैसे करूं, मैं शायद उसका भी जवाब दे रहा हूं। अभी ये सिर्फ अवेयरनेस है, ऑब्वियसली कल से आप शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको पूरा ना पता हो, बट इन चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 1 साल है या 6 महीना है इन सब के ऊपर तैयारी करने का। ऑलराइट, ओके, मैंने एसीटी फ्रेमवर्क के बारे में बात की आपसे, और एक बात है गाइस, दिस फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप दैट इन माइंड, दिस फॉर ऑल ऑफ यू। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो जिनको लगता है कि मैं कम्युनिकेशन अच्छा करता हूं या करती हूं क्योंकि मैंने कॉलेज में इवेंट्स किए हैं, पिछले 2 साल मैंने इवेंट्स किए हैं, मैं स्टेज पे आके बोली हूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो सारे लोग, और जिनको जो कुछ लगता है कि नहीं मैंने तो कभी स्टेज पे बात ही नहीं की, मैं थोड़ा शाई हूं, मैं जनरली इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ये सारे लोग ना अब सेव हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड में। क्योंकि ऑनलाइन बात करना और रिक्रूटर के साथ बात करना डिजिटली, आप कहां बैठे हो, कैमरा में आपको कोई देख रहा है, वहां से लेकर आप किस तरह के शब्द यूज कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव रिटन इन योर सीवी, ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आती है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आपको पहले पता हो करना क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, अवेयरनेस, then preparing, and then representing and communicating, that is all about practice. So एक बात तो याद रखो, we are talking about how to crack an interview or how to get placed. If you want to get placed, which I'm sure all of you want to get placed, that's one of the effect of our degree, right? उसको हमें स्किल में कन्वर्ट करना है और उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और रेलिवेंट प्रैक्टिस, कोई भी रैंडम प्रैक्टिस करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं एफर्ट तो मार रहा हूं या मार रही हूं, पर उस एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा क्या। सो द इंपॉर्टेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट। ऑलराइट, वी कम टू डिजिटल सीवी कॉन्सेप्ट। अब ये डिजिटल सीवी ना बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं लोग, डिजिटल सीवी, डिजिटल सीवी। डिजिटल सीवी और कुछ नहीं होता है, ये होता है आपकी सीवी ऑनलाइन में आना, इसको कहते हैं डिजिटल सीवी, राइट। योर सीवी बीइंग प्रेजेंट ऑनलाइन, मतलब कहने का मतलब योर सीवी बीइंग प्रेजेंट in LinkedIn, your CV being present in online space of various internship sites like Internshala, like Let's Intern, Let's Hire, Naukri, इस जगह पे आपकी सीवी है क्या। और डिजिटल सीवी में और फिजिकल सीवी में क्या फर्क है। फिजिकल सीवी आपको जब कोई इंटरव्यू लेता है या इंटरव्यू लेने से पहले एक बार देखता है, डिजिटल सीवी एक साथ काफी जगह पे जा रहा है, बहुत सारे आई बॉल्स आपके सीवी को देख रहे हैं, पर उसमें उतना ही 7 से 10 सेकंड होता है देखने का। तो इसका मतलब मेरी जो स्टोरी है, एक बात याद रखना गाइस, इन टुडेस टाइम आई थिंक आई शुड चेंज द वर्ड कम्युनिकेशन टू स्टोरी टेलिंग। इट इज एन आर्ट बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैं आपके साथ आज जो बात कर रहा हूं, इट इज अ स्टोरी टेलिंग। मैं इन अ वे आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि भैया आने वाले दिनों में, अब जो हो गया सो हो गया, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इट्स अ स्टोरी।
स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस. साइंस मतलब उसके पीछे कुछ रूल्स है, और आर्ट मतलब उसको थ्रू प्रैक्टिस ही अच्छा किया जा सकता है. सीवी भी वैसा ही है, डिजिटल सीवी भी वैसा है. आपको समझ में आया क्यों? क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग देख रहे हैं पर कम टाइम के लिए देखेंगे. इसका मतलब कम टाइम, कम, आई हैव लिमिटेड टाइम, एंड विद दैट लिमिटेड टाइम आई हैव टू इम्प्रेस द eyeballs. And if I'm able to impress the eyeballs within that limited time, then my CV is fruitful. That is called as the concept of digital CV. और डिजिटल सीवी को रिप्रेजेंट करने का कुछ डूज एंड डोंट्स है. तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये होगा, सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो. अगले स्लाइड से आने से पहले जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, और जब ले लो तो मुझे बताओ डन, एंड देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग. Take a pen and paper, let me know it's done. Yeah, all of you, and then I'll start talking. Guys, is that interesting as of now? Are you learning? Is that interesting for all of you? Yeah, cool. जल्दी से सब लोग पेन एंड पेपर लो, and I'm just waiting for 1 more minute before we start talking. And I'm looking for people to say done. Great. All right. Soumya, thank you. Thank you for your kind words. That's what I want. That all this is for you, and the idea is to become employable. That's the whole point. The idea is to become employable. All right. Okay. अब I'm going to share the screen again. मैं कुछ चीजें बोलूंगा, और ये चीजें आपको जो लोग लिखेंगे, आप सबको लिखना है. कुछ चीजें लिखिए, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को दोबारा मिलेंगे, तो उस वक्त आप लोग को बना के लेके आना है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊं. हो सकता है मैं सारे पॉइंटर्स आज कवर ना करूं, लेकिन जितने पॉइंटर्स मैं कवर करूं आप बना के लेके आओगे. मैंने पहले ही कहा था ये वर्कशॉप है, इट इज नॉट अ मोनोलॉग कि सुन लिया आपको अच्छा लगा चले गए फिर एक दिन बाद भूल गए. नहीं चलेगा. ठीक है? सो यू हैव टू, सो इट्स लाइक यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड इन वन गो कि हमारा सीवी तो बन गया है 80-90% तक, एंड दैट्स हाउ यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी. एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. राइट? ओके. अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं इस तरह सोचूंगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके. अच्छा, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन. ऑलराइट. ओके. अभी आप ये 2 सीवी बाद में देखना. सबसे पहले तो मैं, ओके, लेट जस्ट गिव मी 1 minute. व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू पिक अप, ओके, लेट मी शो यू हियर ओनली. ठीक है? देखो, किसी भी सीवी में सुनते रहो पहले, एंड देन यू कैन राइट. किसी भी सीवी में 3 चीजें होती हैं. एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी, और एक होता है फुटर. ठीक है? हेडर, बॉडी एंड फुटर. ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो. ये वाला पोर्शन जो है, जो मेरा एरो मार्क अगर आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है हेडर. ठीक है? अब हेडर में होता क्या है? हेडर में होता है आपका एक फोटो. आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका एक फोटो इंसर्ट करना है. आप अपना नाम लिखोगे, मोबाइल, ईमेल एंड लोकेशन. अब पॉइंट ये है, ये वाला फोटो होना चाहिए आपका प्रोफेशनल फोटो, और आपका सेल्फी नहीं होना चाहिए. ये डोंट्स है. इट कैन नॉट बी अ सेल्फी, इट हैज टू बी अ प्रोफेशनल फोटो. राइट? दैट्स नंबर. प्रोफेशनल फोटो मींस, अगर थोड़ा सा और इसको इजी बात में किया जाए, प्रोफेशनल फोटो का मतलब है, से फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज के अटायर में हो. ठीक है? इफ यू सी द फोटो ऑफ दिस गर्ल, इट्स प्रीटी प्रोफेशनल, राइट? शी इज वेयरिंग अ ब्लेजर, राइट? nicely combed, and that's what she looks very professional. बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हो, बैकग्राउंड काफी क्लीन बैकग्राउंड है. तो इस तरह का फोटो आना चाहिए. अच्छा, अब एक बात सुनो. ये जो लिखा गया है, अब जो अलाउड आपके फॉन्ट्स हैं, ये लिख के रखो. अलाउड जो फॉन्ट्स हैं वो है आपका एरियल. स्टार्ट राइटिंग एवरीबॉडी. अलाउड फॉन्ट्स, राइट? अलाउड फॉन्ट्स जो आपके हैं वो है आपका एरियल, कैलिब्री एंड वर्दाना. आई रिपीट, एरियल, कैलिब्री और वर्दाना. ये आपके अलाउड फॉन्ट्स हैं. और ये बात अगेन, दिस इज नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट इंडस्ट्री वांट्स. ये इंडस्ट्री एक्सेप्टेड सीवी है, ये नॉट सो इंडस्ट्री एक्सेप्टेड सीवी है. राइट? सो पहली बात, जैसे मैंने कहा, नाम लिखोगे आप,
एंड आप जो फॉन्ट यूज करोगे, फॉन्ट या तो एरियल होगा, या तो वर्दाना होगा, या तो कैलिब्री होगा। ठीक है, ओके। एक तो हो गया फॉन्ट, और फॉन्ट का जो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज 11 या 12, दैट इज इट। 11 या 12 डिपेंडिंग अपॉन आप हेडिंग यूज कर रहे हो या सब पॉइंट्स कर रहे हो, 11 या 12, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज दैट यू नीड टू यूज। ओके, अच्छा, कमिंग बैक टू मोबाइल। मोबाइल आपका वो नंबर जो आपका है एंड वो यूज में है, वो यूज में है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूज में होना चाहिए। डोंट गिव योर फादर्स नंबर और मदर्स नंबर और योर ब्रदर्स नंबर, राइट, और सिस्टर्स, योर नंबर दैट इज इन यूज, राइट। काफी बार हम लोग गलती से व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं जो यूज में ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉल नहीं आ सकता, समथिंग लाइक दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट्स योर नंबर व्हिच इज वर्किंग। What about email? Now, my suggestion to all of you would be have a professional email ID. All right, which means yes, you can use your college email ID if you want. But college email ID होता क्या है कि जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओगे, then many times you don't go and check the college email ID, right? So if you have to have an email ID, my suggestion would be have a professional email ID in Gmail or any other domain, but फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, या आप देख सकते हो क्या अवेलेबल है आपके लिए, बट डोंट यूज इट्स अमेजिंग राधिका एट XYZ और उस तरह की जो चीजें हैं, इट डजंट लुक प्रोफेशनल। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये चीजें पता हो, बट आई एम जस्ट रीइटरेटिंग सो दैट जिनको पता है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं पता है या जिनको पहली बार समझ में आ रहा है आप ध्यान में रख सकते हो। ये लगती बहुत छोटी चीजें हैं, बट आगे जाके मैंने क्या बोला, डिजिटल सीवी एक साथ बहुत लोग देख रहे हैं, 7 से 10 सेकंड के लिए, इट बिकम्स द मेजर डिफरेंशिएटर, वो चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। देन कम्स योर लोकेशन। लोकेशन में पूरा का पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, राइट। लोकेशन में गाइस इफ यू कैन गो ऑन म्यूट प्लीज, दैट विल बी ग्रेट, राइट। सो लोकेशन में पूरा का पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। हेलो, या पूरा का पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, आप करंट लोकेशन अपना दे सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट से आई एम इन शोलापुर, सो यू राइट शोलापुर, और यू आर इन अहमदनगर, यू कैन राइट दैट्स द लोकेशन। अगर एड्रेस वो पूछेगा, अगर वो पूछता है फुल एड्रेस, देन ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट द फुल एड्रेस, बट डोंट यू हैव टू यूज द एंटायर स्पेस फॉर फुल एड्रेस, क्योंकि वहां पे नजर जाएगी नहीं वैसे भी, राइट। ओके, सो दैट्स अबाउट द हेडर पार्ट, राइट। ओके, सबसे पहले हेडर पार्ट में कोई सवाल, इज इट ऑल क्लियर? अ क्विक यस विल हेल्प। हेडर पार्ट में कोई सवाल, अ क्विक यस विल हेल्प। सबको समझ में आ गया? कोई सवाल है? और अगर समझ में आ गया तो पुट ए थम्स अप और ए यस। अच्छा मंजीत, जूम करना है? मैं जूम कर रहा हूं, ओके, आई विल जूम इन, या all right, just give me 1 minute guys, just drink some water, just give me 1 minute. All right, okay, once again I'm back. हाँ जी, डाउट पूछिए, हनी, यू कैन आस्क योर डाउट। व्हाट्स योर डाउट? That's fine. That's okay. You can put your first name dot last name, right, honey? No, it's okay. I understand. That's okay. But honey dot patre or patre dot honey. You can have that kind of thing. That's okay. Don't only put honey. Maybe you can put your
first name, last name, first name, something like that, right? And you can go ahead, and that's perfectly fine, right? Hope that answers your query. Yeah, then that's fine. Then that's okay. That's perfectly fine. Okay. All right. आगे चले. Is that fine? Right. Okay. Great. चलिए. अभी हम, so we are going to spend another 10 minutes guys, so hold on, we are going to spend another 10 minutes, right? और हम लोग बॉडी में आ रहे हैं. हमारा हेडर हो गया है, हम लोग बॉडी, तो आप लोगों को हेडर बना के लाना है, और मैं बॉडी में जो जो पढ़ाऊंगा अगले 5 से 7 मिनट में, जो मैं बॉडी में पढ़ाऊंगा वो बना के लाना है, एंड देन वी विल फिनिश द बॉडी एंड द फुटर पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है? ओके, लेट मी शेयर विथ यू. ओके, सो मंजीत ने कहा था इसको जूम करने के लिए. ओके, तो बॉडी में आते हैं. अब आप बॉडी में अगर आप आओ, बॉडी में पहला पॉइंट आएगा आपका प्रोफाइल समरी. बॉडी का पहला पॉइंट है प्रोफाइल समरी, और दूसरा पॉइंट है एजुकेशन. मैं यहां पे आके एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है? प्रोफाइल समरी एंड एजुकेशन. अब सबसे पहले एजुकेशन में आ रहा हूं. एजुकेशन में आपको, आपका पहला होगा ऑब्वियसली परसुइंग बीई कंप्यूटर साइंस फ्रॉम डीवाई पाटिल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, जो आपका कॉलेज का नाम है. ठीक है? यू आर परसुइंग, और वहां पे लिख देना फाइनल ईयर, यू आर इन द 4th ईयर. दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, आपको 10th और 12th का लिखना है. ठीक है? आप बेसिकली क्या होता है एजुकेशन में, जब भी आप अपना सीवी बनाओ, जहां से हो वहां से तीन डिग्रीज पीछे जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं. तो आपके केस में परसुइंग ग्रेजुएशन विच इज बीई, मेंशन करना है बीई कहां से और कौन से ईयर में हो आप, एंड आप करोगे 12th एंड 10th. अगर आप गौर करो, देखो कैसे लिखा गया है. 12th सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम, कहां से किया आपने, और इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम, और कब ग्रेजुएट हुए आप उस स्कूल से, राइट? आपने फाइनल एग्जाम कब दिया 12th का और 10th का, और कितने मार्क्स थे. यहां पे गौर करो, वो उस तरह लिखा ही नहीं गया है 10th फ्रॉम इन, ऐसे नहीं, आपको बोर्ड मेंशन करना है. 10th 12th सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन 2014 with 89% और 67% और 78%. सो व्हाट इज द राइट वे एजुकेशन के अंदर? सबसे पहले तो करेंटली जो परस्यू कर रहे हो, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, राइट? एंड आप कौन से ईयर में हो, राइट? कॉलेज का नाम ऑब्वियसली आप कौन सी, मतलब आपका बीई कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेज ये है आपका, एंड इन 4th ईयर, राइट? फिर आपका आएगा 12th स्टैंडर्ड, एंड देन आएगा 10th स्टैंडर्ड. बोर्ड का नाम, कौन से स्कूल से, और कब आप वहां से आप फाइनल पेपर आपने कब दिया, और कितना परसेंटेज था. ठीक है? ओके, अब आते हैं हम प्रोफाइल समरी पे. बिफोर दैट, सबसे पहले तो एजुकेशन पार्ट क्लियर, एजुकेशन पार्ट क्लियर फॉर एवरीबॉडी. अ क्विक यस दोबारा. सो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ताकि कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो. जरूरी नहीं है तुषार, जरूरी नहीं है. एजुकेशन को जैसे दिखाया वैसे करो. टेबल फॉर्मेट इज अ ओल्ड फॉर्मेट नाउ, नॉट रिक्वायर्ड. एजुकेशन पार्ट क्लियर हो गया सबको? ए क्विक यस फ्रॉम एवरीबॉडी विल हेल्प. चलो, ओके, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू प्रोफाइल समरी. सो प्रोफाइल समरी का ना, पहले मैं बताता हूं फंडामेंटल क्या है. प्रोफाइल समरी क्या होता है डिजिटल सीवी में मैं बताऊं आपको, एक रिक्रूटर का ध्यान पहले 3 या 4 पॉइंट्स के नीचे जाता ही नहीं है. एक रिक्रूटर का ध्यान, ओके? तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रिक्रूटर का ध्यान है, अगर आप उसका सो इफ यू सी एज अ रिक्रूटर, जब सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट देख रहा है तो नजर कहां जा रही है? फोटो पे जा रही है, आपके नाम पे जा रही है, और प्रोफाइल समरी पे जा रही है. अगर आप गौर करो तो इसका मतलब यह है कि प्रोफाइल समरी हमारा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को यह बताए कि आप जरा नीचे भी देखो, नीचे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्लीज हैव ए लुक इनटू इट, बिकॉज दैट विल गिव यू द स्टोरी ऑफ माय प्रोफाइल समरी, which means profile summary becomes very important.
एक गलती जो जनरली लोग करते हैं, वो गूगल करके जो भी कॉमन प्रोफाइल समरी है वो लिख देते हैं। और मैं बड़ा फनी स्टेटमेंट बताऊं आपको, एक last to last month, with before the lockdown, while I was evaluating some of the CVs, I got 50 CVs from one particular institute. उसमें से 25 का प्रोफाइल समरी सेम था। ऐसे कैसे हो सकता है? Everybody has a different story to tell. वो इसलिए हुआ है बिकॉज वो गूगल के पहले 2 लिंक में वही लिखा हुआ था और वहीं पे कॉपी किया गया था। वेरी वेरी पुट ऑफ इन टूडेज टाइम। प्रोफाइल समरी, अच्छा तो अब जिनको थोड़ा अंदाजा नहीं है पहले उनको समझा देता हूं। प्रोफाइल समरी का मतलब क्या है? प्रोफाइल समरी का मतलब है आप अपने प्रोफाइल के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं 3 से 4 लाइन में सामने वाले को बता रहे हो। 3 से 4 लाइन में अपने प्रोफाइल की इंपॉर्टेंट बातें, स्टोरी की इंपॉर्टेंट बातें। सो इसका मतलब अगर आप देखो राधिका ने यहां पे जो लिखा हुआ है, चेक दिस आउट, कॉमर्स ग्रेजुएट with passion for helping people with financial planning. Let me just resume the slideshow. Financial planning. So a commerce graduate with passion for helping people with financial planning. Being a treasurer of the student union in college helped me enhance my financial planning skills and reduce the annual expenses by 11% as compared to previous year. अब उस कैसे लिखा गया है? उन्होंने अपना सबसे पहले बताया कि वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग उनका एक स्किल है, और इस स्किल को उन्होंने कैसे दिखाया कॉलेज में, जब वो किसी इवेंट में ट्रेजरर थे तो उन्होंने उस इवेंट में 11% एनुअल एक्सपेंसेस उन्होंने कम खर्चा हुआ उस कॉलेज का इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर उस इवेंट में। तो शी basically said my ability to do financial planning, ये स्किल मुझे ये लर्निंग को मुझे स्किल कन्वर्ट करने में इस इवेंट ने मदद की, राइट? सो इफ यू रियलाइज, कोई अगर रिक्रूटर पढ़ रहा है इसके प्रोफाइल समरी को, क्या समझ में आएगा कि राधिका इज अ ग्रेजुएट which is a commerce graduate and she seems to be good in financial planning. That's what I can understand. And why I can understand? Because she has done one activity which involved financial planning, और सिर्फ involved नहीं, उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कैसे वो कैसे उस financial planning में what was the end result of that particular task. उस रिजल्ट की वजह से, उस अचीवमेंट की वजह से मुझे समझ में आया और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि फाइनेंशियल प्लानिंग राधिका का अच्छा है। अंडरस्टैंड एज अ रिक्रूटर हाउ आई एम थिंकिंग। अगर आप यहां पे देखो प्रोफाइल समरी, एक दूसरा फॉर एग्जांपल राधिका, एन इंजीनियरिंग फ्रेशर हु इज सेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, लवेबल, आई नो हाउ टू यूज माय टेक्निकल स्किल फॉर माय बेटरमेंट, पास्ट बीटेक टू एनहांस माय प्रोफिशिएंसी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज दिस पर्सन टॉकिंग अबाउट। आप अगर रिक्रूटर की जगह पे हो, आपको लगेगा सब सारे पॉजिटिव वर्ड इन्होंने डाल दिए हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, आई नो हाउ टू यूज माय टेक्निकल स्किल्स। पर कैसे? आपने बोल दिया आई नो हाउ टू यूज, बट आई एम नॉट अवेयर हाउ डू यू यूज। दैट मींस आई हैव टू टॉक टू यू, बट फॉर मी टू टॉक टू यू आई डोंट हैव दैट टाइम बिकॉज़ देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेंट्स इन डिजिटल सीवी। आई होप यू रियलाइज नाउ। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि रिक्रूटर सोचता कैसे। सो आप लोग प्रोफाइल समरी कैसे लिखोगे? 3 से 4 लाइन, उसके ऊपर नहीं। अगर आप गौर करो ये 4.5 लाइन हो गया। 3 से 4 लाइन, कोई भी अलग कलर या फॉन्ट यूज नहीं करना है। मैंने आपसे कहा एरियल, वर्दाना या आपसे मैंने कहा था हाँ कैलिब्री कहा था, कैलिब्री, और आपका फॉन्ट 11 या 12 इतना ही होना चाहिए। ऑलराइट? और हाँ एक बात और, सीवी को हमेशा लेफ्ट अलाइंड रखना, लेफ्ट अलाइंड। एक बात याद रखना, दैट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, ऑलवेज कीप लेफ्ट अलाइंड। ओके, देखो मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं सीवी के, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेम्पलेट विच इज एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री, बाय मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स, एंड दिस इज व्हाट आई एम शोइंग। ये मैंने आप मन से नहीं बोल रहा हूं, दिस इज व्हाट द रिक्रूटर्स हैव टोल्ड मी एंड दैट आई एम कन्वेइंग, एंड ऑब्वियसली ओवर द इयर्स आल्सो आई हैव सीन इट, राइट? इसलिए कोई अच्छा या बुरा की बात नहीं है, एक चीज फॉलो करो पर उसको इंडस्ट्री के हिसाब से फॉलो करो। अभी जो मैंने पढ़ाया, लेस इज मोर, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेस उतना ही जानना है जितना जरूरी है एम्प्लॉयबल बनने के लिए, एंड ऑब्वियसली सीवी बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट।
सो प्रोफाइल समरी दोबारा रिपीट कर रहा हूं और आप अपने सवाल पूछ सकते हो एंड विद दैट वी विल स्टॉप फॉर द डे। प्रोफाइल समरी का मतलब हमारी स्टोरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, मैंने 3 साल की इंजीनियरिंग में जो चीजें सीखी, जो मैं बताना चाहता हूं मैंने सीखा है, 10 चीजें नहीं, मे बी 1 या 2, और वो कैसे मैंने इंप्लीमेंट किया है, अगर इंप्लीमेंट किया है तो वो मैं लिखूंगा अपने प्रोफाइल समरी में, सो दैट इमीडिएटली रिक्रूटर का ध्यान उन चीजों पे आए और रिक्रूटर आपको और जानने के लिए उसको रिक्रूटर के हिसाब से he or she wants to know you more and that's why you get a chance to get an interview call, or the recruiter would like to go down and see what else you have done or how those skills you have done, which is given in more detail going forward. So profile summary, CV header and education. ये समझ में आया? Give me a quick yes or any questions you have. Okay, wait, let me have 2 questions. Vedansh, profile summary should be a collection of your skills, as I told you. Important ones, not all. Important ones. You can't have skills for every word, right? Important ones, not all. Okay. A quick question, single page CV? Single page CV, Vivek, absolutely. Only a single page CV, very important. All right, guys. So we are going to stop here today. We are going to stop here. लेकिन this is what happens with every of my session, right? हमने learning objective से start किया था कि ये हमारे learning objective है. I also want you to tell me now, as we finish the session, what is the takeaway? आप क्या takeaway ले जा रहे हो आज के session में? कोई भी एक concept, कोई भी एक example, कोई भी एक चीज जो दिमाग में रह गई आपके, जो आप साथ में लेके जा रहे हो. टेकअवेज अगर होगा देन योर लर्निंग इज वेरी सॉलिड. ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैट्स द फंडामेंटल ऑफ एनी लर्निंग फॉर एनी सब्जेक्ट. स्टार्ट टाइपिंग योर टेकअवेज. Start typing your takeaways. That's very important. What is your takeaway of the day? 126 people are there. Less is more, Shubhankar. Thank you. Go ahead. Thank you for reminding. One page CV. T-shaped learning, T-shaped individual. Thank you, Pratik, for making us remember. Snehal, less is more. Absolutely. Short is sweet. ठीक है, मैंने ये बात बोली नहीं, but that's what you can infer. Fair enough. Thank you. Profile summary is your takeaway, Rajat. Thank you. Digital presence. Yes. जैसे मैंने कहा, digital presence is with respect to your story, and that's how you get attracted by recruiters. Absolutely. Start writing, guys. Start writing. Stop mindset. Very important, Soumya. Thank you for realizing. Industry-driven practice is more important, Vedansh. Industry-driven practice, very important. Expressing yourself, communication, strong communication, very important. 30% resume, 70% communication. Great. Kirti, short and impressive. Yes, it is. Quality, yes, Aditi, always. Quality with respect to less is more. Don't do random certifications. Employability and employable. Networking. Implementation of skills. Learning, convert to skills. Yes. Digital CV. Thank you so much for reminding all of us once again. Yes, communication, and that to the word communication. You know, my takeaway is from communication ranging from cracking the interview, to customer centricity. LinkedIn नहीं है, LinkedIn है तुषार. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Yeah. Certificate, yes, it has to be mapped with an industry-driven skilling. Very important. No random certifications. Absolutely. Sagar, networking. Great. See the power of collaborating learning. अगर आप ये सारे words एक साथ जोड़ दो और word में लिखो, don't you realize this is what we have been talking since last 1 hour? That's the power of collaborative learning, and that's how you should always mention the takeaway at the end of the session. तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है बाकी के takeaway से भी, बाकी लोगों के takeaway से भी. All right, guys. I think great learning. I think great learning from and great talking to all of you. I think very, very excited to talk to you, and we catch up again. Yes, I'm going to share my LinkedIn. You can this is my, you can type Rohit Ghosh and Skill Edge in LinkedIn. You will get me. All right. So thank you so much, guys, for joining in. I think
it's a great learning for me also, talking to all of you people. Very excited. I always get excited talking to students, and that's how that's what I do, and that's how it makes me excited. So see you again on 6th, and we learn more on beyond education. I'm going to see what you have done. So make sure you do things and come, so that our learning is more solid. All right. Hope you enjoyed and learned a lot. And that's what I would like you to learn and take away. Right. Thank you, Rohit. So my humble request to all the students is, you should now start making your resume. Even if you have one, let's improvise the resume. And when we meet on Saturday, let's work on the same resume so that we can make it better. Yeah, and we will. Thank you, Rohit. Yeah, we will finish that body part and the footer part on Saturday. So make sure you come prepared so that we can all finish the CV, and my CV is ready so that you can start digitally use it. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.